Good evening, everyone. This is Jammu and Kashmir News Analysis. Whatever important news we will be discussing today, I'll post that in my Telegram channel. I have also posted the link of the Telegram channel in the comment sections of the video. So let's start. The first news says that Collegium recommends elevation of Justice Koteshwar as the Supreme Court judge. जो Justice Koteshwar है, he was serving as a Chief Justice of the Honorable High Court of Jammu Kashmir and Ladakh. Now he is being elevated as a Supreme Court judge. Also, Justice R. Mahadevan, he is also being elevated as the Supreme Court judge. जो हमारे नए Chief Justice हैं, he is Justice Suresh Kumar Kate. अगर हम बात करें अपॉइंटमेंट ऑफ द वेरियस जजेस की तो कोलिजियम टेक्स इनटू कंसिडरेशन वेरियस फैक्टर्स फॉर एग्जांपल सीनियरिटी ऑफ द जजेस मेरिट परफॉर्मेंस उनकी इंटीग्रिटी कैसी होती है उन्होंने जो जजमेंट्स अभी तक दिए हैं वो किस बेसिस पे दिए हैं ऑल्सो ये इंश्योर करता है डिवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रीजन जेंडर फॉर एग्जांपल अगर हम कल की बात करें तो देयर वाज अ लैंडमार्क जजमेंट गिवन बाय ऑनरेबल जस्टिस पीवी नागरत्ना regarding the maintenance of the Muslim women. तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि diversity in the judicial system ensure करता है diversity in the judgment also towards the justice towards the vulnerable sections also. For example, it also ensures inclusion of marginalized and backward segments of the society and the community. जो अभी जस्टिस सुरेश कुमार केट हैं, he belongs to the scheduled caste category, thus ensuring that marginalized and backward segments of the society get inclusion in the judicial system of the country. अगर हम बात करें जस्टिस ताशीर आबस्तान की, he will now be acting as a Chief Justice of the Honorable High Court of Meghalaya. इन चारों की पिक्चर्स I will be posting in my Telegram channel and उनका current designation भी जिससे you can easily recall about the current news. Moving on to the next important news, which is about the Umanagar temple. This temple is in district Anantnag. Since 34 years, this temple was not being opened for various devotees. 1990s में this temple was vandalized, but now this is being reconstructed and इसको devotees के लिए open कर दिया गया है. This temple is an ancient temple of goddess Uma Bhagwati. Moving on to the next important news, which is about the Miss Universe of Jammu and Kashmir. And one interesting fact about this is that all the women who are above the age of 18, irrespective of their marital status, वो divorced हैं, single है, widow है, single mother है, या married है, they can participate in it irrespective of the upper age limit. तो ये कहीं ना कहीं various homemakers को, housewives को एक platform देगा to empower them, to help them maintain an identity in the society. और whoever will be declared successful उसको टाइटल मिलेगा मिस यूनिवर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बहुत सारे नोटेबल पर्सनालिटीज जैसे सना दुआ हु इज मिस इंडिया ऑलरेडी फ्रॉम JNK, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन, हरना संधू, ये भी यहाँ पे एज ए जूरी एंड ऑर्गेनाइजर्स प्रेजेंट होंगे. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज in the Hindu. In the Hindu, it tells about the it's an news regarding the international border. This news tells about the latest terrorist attacks that took place in the Jammu division. जैसे हमने देखा कि सांबा कोटवा में recently there has been hike in the number of the terrorist attacks. So there was a concern कि कहीं intrusions तो नहीं हुए हैं. तो regarding that there was a meeting being held जिसमें ये देखा गया कि हमारा security system of the border security is comprehensive. हमारे पास underwater cameras हैं, sensors हैं, riverine patches पे, तो कहीं ना कहीं intrusion is tough. लेकिन अगर हम बात करें इंट्रूजन फिर भी होती है थ्रू टनल्स और ऐसी ही 5 टनल्स को डिटेक्ट किया गया था 2022 में. तो इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिया हुआ है. अगर हम JNK की बात करें, JNK के बॉर्डर की, तो अगर हम लद्दाख एरिया की बात करें तो दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. इस वाले रीजन की बात करें तो दिस इज लाइन ऑफ कंट्रोल दैट इज LOC. और ये वाला रीजन जो हमारा है this is the IB that is international border जो कठवा सांबा रीजन के साथ है. अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक important fact आपको ये याद रखना है कि LOC is being managed by army and जो आपका IB sector होता है that is the international border that is managed by PSF. तो ये important fact है जो आपको पूछ सकते हैं किसी भी एग्जाम में इंटरव्यूज में. और अगर हम बात करें लाइन ऑफ कंट्रोल की that is 740 kilometers long. The next important news is in the
इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से आप जो है मेंस का कोट कर सकते हैं. इट्स अ quote given by historian Herodotus, who says that in peace sons bury their fathers and in war fathers bury their sons. ऑफ कोर्स अगर हम बात करें जैसे कहीं पे भी वॉर होता है तो यूथ डाइज, क्योंकि यूथ फॉट्स द वॉर, यूथ फाइट करता है उस वॉर को, और इट बिकम्स कंपल्शन फॉर एन ओल्ड फादर टू बरी हिज सन्स. लेकिन अगर हम पीस की बात करें तो ओल्ड पर्सन जो है वो पीसफुली डाई हो करते हैं, दे डाई पीसफुली एंड देयर चिल्ड्रन बरी देम. तो आप इसको यूज कर सकते हैं इससे में या कोई भी क्वेश्चन आया में जो वॉर एंड पीस के रिलेटेड हो. अब इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज अबाउट द एप्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, जो हिस्ट्री बताता है कि ये कहाँ से ट्रेस हुआ था. इट ट्रेसेस इट्स हिस्ट्री बैक टू 1950s, जब श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ही टुक ए कॉल इन द पार्लियामेंट. उन्होंने कहा था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे. वन नेशन कैन नॉट एक्सेप्ट टू कॉन्स्टिट्यूशंस, टू हेड ऑफ द स्टेट्स एंड टू फ्लैग्स. तो अगर आपको कहीं पे पूछा जाए कि कब ऐसी बात की गई थी, एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो दैट dates back to 1950s. The next important news is in Greater Kashmir. It's about the recent decline in the enrollment ratio of the children. जैसे कि हमने पिछले एनालिसिस में भी कवर किया था कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है वैलिड रीजंस के लिए मांगा है, तो अभी तक कोई वैलिड रीजंस आए नहीं है. तो मैं खुद भी कोई रीजंस बता नहीं सकती जब तक कोई ना कोई एनालिसिस इसमें आए. जब इसमें एक एनालिसिस आएगा, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सीख किया है फ्रॉम द वेरियस सीईओज और 15 दिन का टाइम दिया है कि क्यों डिक्लाइन हुआ था, तब हम प्रॉपर एनालिसिस इस चीज़ की करेंगे. तब तक आपको बस डेटा याद रखना है कि जैसे 27 लाख जो थे 2021 में एनरोल हुए थे, वो डिक्रीज हुए 26 लाख तक 2022 में. द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल इज by the Honorable this Minister of Health and Family Welfare, श्री JP नड्डा. इसमें बताया गया है अबाउट पॉपुलेशन, कैसे इंडिया के डेमोग्राफिक्स चेंज होते हैं. दिस इज मोस्ट, ये ज़्यादा JNK से रिलेटेड नहीं है. मैं चाहती हूँ कि जो हमारा वीडियो सीरीज है दिस शुड बी लिमिटेड टू JNK ओनली, और मैं इसको कंसाइज कर पाऊँ इन 10 मिनट्स ओनली. अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी नेशनल न्यूज़ भी कवर करूँ तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं. अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आप आई जस्ट गिव यू एन आइडिया. जैसे कल द हिंदू में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए थे, आप वहाँ से जो है इसको कवर कर सकते हैं. वहाँ पे वेरियस स्टैटिस्टिक्स नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के भी दिए हुए हैं. इफ़ यू वांट मी टू कवर दिस आई विल कवर इट. फिर मैं एक अलग वीडियो बना के इसको कवर करूंगी, या मैं अगर आप चाहते हैं मैं ये जो है स्क्रीनशॉट शेयर भी कर सकती हूँ. यू जस्ट नीड टू कमेंट एंड आई विल शेयर इट. तो आप कल का हिंदू पढ़ सकते हैं. 3 आर्टिकल्स पॉपुलेशन पे आए थे. And apart from this, I don't think there is anything important today. That's it for today. Have a good day ahead.